Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be exploring the SNC alignment of mathematics and science. So initially we'll be talking about mathematics, and then we will be talking about mathematics, since the alignment of these two is obviously fairly different. So I would want you to first focus on mathematics, then we will have a small Q&A towards the end of this maths portion, so that you can just shoot out any questions that you have. In case if you have a question during the presentation, you can just type it out in the chat box or raise your hand so that I can refer to it. But we will be having a 15 minutes of Q&A towards the end of math session, and also towards the end of science. So looking at the maths curriculum, okay, what's a good way of talking to you? Would you like me to go bilingual, or would you want me to keep it totally in English? Because I really want that this session should be fruitful for each one of us. So in case if you would want me to go bilingual, even that's possible, because the main idea behind the whole activity is to be able to understand how and what we are required to do as far as the single national curriculum is concerned. So please let me know what is a good way for you to attend this session. Would you want me to go bilingual, or would you want me to conduct the entire session in English? What's your preference? You can unmute your mic to answer if you like. Okay, I can't see any answers from your side. So in case if you don't understand anything, I will try to use both languages simultaneously. All right. So initially we'll be talking about what is single national curriculum. So it's one nation, one curriculum, and we'll be talking about mathematics curriculum from grade K to grade 8. What is happening? Okay, so looking at our website, you can see that it is www.oup.com.pk. So Alhamdulillah, by the grace of God, we have actually obtained an NOC for all our maths titles, including Maths Wise, Countdown, and New Syllabus Primary Mathematics. So basically, whatever subject, whatever book that you choose for a particular subject, you can choose any. It doesn't really matter, but the content would be the same for any title if it is SNC approved, whether it be us or whether it be any other publisher. The contents would revolve around the same curriculum. So we need to understand कि single national curriculum है क्या? What is single national curriculum? Or what are we expected to do, and how it is different than what it was earlier. So we will be just looking at the SNC alignment of the books, how books should be aligned as per the single national curriculum, what teaching strategies would be ideal if we want to actually impart knowledge based on the single national curriculum. We'll be talking about the inclusions and deletions,
as per the books that we experienced, and also the math lab activity resource, assessment book, and teacher manual, which is a requirement as per the SNC. And then I will also be talking about digital resources that you can actually use, which tie in well with mathematics content. So looking at the first portion, whatever comes to your mind, frequently asked questions, just think about it. When you talk about SNC, what comes to your mind? So I just jot down the things that I felt were really important to me and to people who attended sessions on single national curriculum. So the main questions always used to be that what does single national curriculum aim to achieve? इसका मकसद क्या है? What are the mathematics teachers expected to do? Teachers को अब क्या फर्क करना है? Our national curriculum for maths content was already based on key learning strands. So how is it any different? पहले भी content जो था learning strands पे based था, अब फर्क क्या हो गया है? So what are the suggested teaching strategies that we need to adopt while teaching mathematics content? So अब जो teaching है उसमें जो strategies as per today required हैं, क्या हम already वो teaching strategies adopt करें? Are we already implementing those teaching strategies, or maybe we need to actually adopt a few more to make the content interesting for the students? So what should be the role of a mathematics teacher at present? He or she is the main source of dispensing information. So how can a teacher help learn mathematics terminologies? So it's very important that the teachers should implement the content in such a way that children talk in terms of mathematics, they think in terms of mathematics, and their thinking is logical. So then we will also be talking about how we should be tackling the assessments and evaluations. So here you can see this, sorry, link here, which takes you to the SNC document, which was presented for when the government decided that books should be in line with the single national curriculum. They made this document public, and that was the main document which helped all the publishers, all the people to change their present books in such a way that every book follows one pattern. So looking at the single national curriculum maths, the mathematical curriculum content strand focused on these 4 areas: number and operations, algebra, geometry, and data handling. And these needed to be dealt with through reasoning and logical thinking. So पहले भी यही था कि number operations थे, algebra थे, geometry and measurement था, और data handling था. लेकिन अब फर्क ये हो गया है कि there has to be more focus on reasoning and logical thinking. So now children will be thinking and they will be thinking independently, and then they will actually support their choice through reasoning. कि कोई भी जो आपने sort of operation use किया है, उसकी वजह क्या है? Why did you choose that? And what are the reasons for your choice? So looking at the pre-primary grade 1 से पहले जो books हैं, जो KG nursery और आपके pre-1 से पहले की जो books हैं, they are based on early childhood care and education. और इसके अंदर basically what happens is that the books are as per these 4 competencies. So competency 1 is that the children will develop basic logical, critical, creative, and problem solving skills,
और ये कैसे करेंगे? They will be demonstrating an understanding of the different attributes of objects such as color, size, weight, and texture. And then they would do activities such as matching, sequencing, sorting, classifying, and objects based on one or two attributes. So competency 2 was that children will develop a basic understanding of quantities, counting up to 50, and simple number operations from 0 to 9. Competency 3 was that children will recognize basic geometric shapes and the position of objects in relation to each other and surroundings. And fourth competency is that children will develop an understanding of measurement. So based on this, the books were to be designed. So our Maths Wise series from grade 1 to 5 is also available at our Eve platform, which is a digital platform in which you will find lots and lots of videos and activities which are interactive, which are based on the SNC. So here we have also addressed the requirement for the content to be supported digitally through integration of various interesting activities which will make mathematics easier for the children, and it would be fun. And this platform also enables the teachers to gauge the progress of their children throughout. So this is a subscription-based platform, and if you need more help with its implementation, in case if you want to implement this, you can get in touch with our sales rep. So looking at the benchmarks, you can see that the basic benchmarks are all stated in the single national curriculum, and it is very clearly told in detail what we need to get from our students. So these benchmarks then become the basis for the student learning outcomes. Now, these specific learning objectives or student learning outcomes become the basis of the objectives of our class. So when we interact with students, our objectives would be based on these SLOs, specific learning objectives for students for each and every grade. So these learning objectives are always mentioned in the start of the chapters, and this gives you a very detailed idea of what you are expected to do during the classrooms. So what is different now as compared to the PCTB book? Why we should go for any other maths resource if we already have a book by PCTB? So the basic difference is that government has laid down a lot of emphasis on the single national curriculum, but they do say that you are allowed to actually focus more on 21st century skills and higher order thinking skills. So PCTB covers only a bare minimum of what the requirement is. So all other books by any other publisher, if they are SNC aligned, they would mostly be focusing on the 21st century skills and higher order thinking skills if they are able to get an NOC for their content. So we have gotten this NOC because our content is 100% aligned with the single national curriculum, yet it focuses on the 21st century skills, which covers communication, collaboration, critical thinking, creativity, and also focuses on children's higher order thinking skills. So looking at the cognitive domains for maths, you can see that the focus needs to be in these three areas. Number one is knowledge. Then when the children acquire that knowledge, they should be comfortable and they should be able to apply that knowledge at the right places. So applying is an area where
the SNC focuses more now, because if the child knows the content only and is not able to apply that content wherever it's necessary, then it's of no use. So we need to focus more on their understanding and the application of that knowledge. And thirdly, they should be able to reason. They should make informed decisions. They should be able to analyze situations, synthesize, and evaluate. So, as you can see, that the cognitive domain of knowing has a 40% weightage in the curriculum. And this covers all these action verbs: recall, recognize, classify, and order, or compute. So recall would cover such areas as recalling the definitions, terminologies, units of measurement, geometric shapes, and notations, while recognize would concentrate on number expressions, quantities, shapes, etc. And when we talk about classification or order, so students should be able to classify numbers and shapes by their common properties. So looking at computing, the children will be able to carry out algorithmic procedures for addition, subtraction, multiplication, and division, or मिस combination आयशा, of these. हेलो। Yes, जी मिस yes. आयशा, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पीड तेज होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रही, तो आप जो है So I उर्दू मीडियम भी जो है वो उसको भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश और स्पीड की वजह से जो है वो समझ नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, आई कीप इट बायलिंगुअल जी। जी जी, और बायलिंगुअल इन कर लें केस, इसे। हाँ, अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रही, एवरीबडी प्लीज इनको माइक ऑन करने की ऑप्शन दे दें, सो दैट दे कैन आस्क राइट अवे। ठीक है। जी अच्छा जी देखिए भाई, ये जो करिकुलम है ना, इसके अंदर 40% जो है, 40% फोकस इज ऑन नोइंग, नॉलेज, कंटेंट को जानना। ठीक है। और 40% जो है उसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि मैंने कंटेंट जान लिया, मुझे आ गया कि मुझे ऐड कैसे करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, लेकिन जब जरूरत पड़ी, क्या मैं इतनी मेंटली अलर्ट हूं कि मैं जान सकूं कि यहाँ पे मुझे कौन सा ऑपरेशन जो है वो करना है। सो ये जो एप्लीकेशन है ना जी नॉलेज की, ये बहुत जरूरी है। सो सिंगल नेशनल करिकुलम ने ये कहा कि नॉलेज को किसी भी लाइक सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन को जानना तो जरूरी है ही है, लेकिन उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, किस किस वक्त, इस बात की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना और भी ज्यादा जरूरी है। सो 40% उन्होंने एप्लीकेशन के पोर्शन को दिया, दैट आपने जो नॉलेज सीखी है उसको सिनेरियोज के अंदर आप अप्लाई कर सको। और 20% जो एरिया था वो उन्होंने फोकस किया रीजनिंग के ऊपर, कि अच्छा अब अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है तो मैंने क्यों किया है, आई हैव टू हैव अ रीजन फॉर इट। एज यू ऑलरेडी नो, मैथ्स के अंदर कई दफा हमारे पास एक से ज्यादा तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं ऐसा तरीका इख्तियार करने की जो जल्दी से हो जाए। सो मैथ्स इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड और वर्किंग स्मार्ट, इट्स ऑलवेज वर्किंग स्मार्ट। हमेशा क्या होता है कि हमने लंबे लंबे वक्त नहीं लगाने होते, हमने कोशिश करनी होती है हम ऐसे तरीके सीखें, ऐसे एप्लीकेशन के स्टाइल सीखें जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि नॉलेज जब आप तक पहुंच जाती है तो उसको सही टाइम पे अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको वो नॉलेज आ गई है लेकिन जिस वक्त जरूरत पड़ी आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर उस नॉलेज का फायदा नहीं है। सो बेसिकली ये जो नोइंग का जो एरिया है जिसके अंदर ये सब चीजें, रिकॉल, रिकग्नाइज, क्लासिफाई यानी अलग अलग करना, ऑर्डर के हिसाब से चलना, कंप्यूट करना, ये चीजें तो आनी ही चाहिए। लेकिन जो एप्लीकेशन है ऐसी नॉलेज की, जो ऑलरेडी हमने ये कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दिए, जब जरूरत पड़ेगी तो क्या आप उस डेटा को डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है
वो इस वक्त ज्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या आप इसी डेटा को टेबल्स के फॉर्म में या ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे कई दफा क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है और आप क्या करते हैं कि आप पाई चार्ट्स बना लेते हैं। पाई चार्ट्स आपको बताते हैं कि जी कितने परसेंट लोग जो थे वो क्या सोच रहे थे। सो उस तस्वीर को देखकर उस डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाता है। देन देर आर ग्राफ्स। ग्राफ्स भी आपको हेल्प कर रहे होते हैं, बता सक रहे होते हैं। अच्छा, लेट्स से एक क्लासरूम है, उसमें हम पता करें कि जी कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको एप्पल्स पसंद है, कौन से ऐसे हैं जिनको बनानास पसंद है, कौन से ऐसे हैं जिनको पोमेग्रेनेट्स पसंद है। एंड देन वी एक्चुअली प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ एंड देन वी फाइंड आउट कि यार सबसे ज्यादा तो जो बच्चों को बनानास पसंद है क्योंकि उसका बार सबसे ऊंचा जा रहा है। सो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट डेटा, हाउ टू प्लॉट दैट डेटा, हाउ टू मेक मॉडल्स ऑफ दैट। सो ये सारी चीजें जो हैं इसको एप्लीकेशन के ये डोमेन में आता है। एंड देन applying strategies and operations to solve situations involving mathematical concepts and procedures. So अब जानना ये है कि लेट्स से हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व है तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो उसी कंटेंट को जब हम इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे तो हमें उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। देन रीजनिंग, थर्ड एरिया जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम फोकस करता है वो रीजनिंग का है। अब हो सकता है कि मैं किसी क्वेश्चन को एक तरह सॉल्व करना चाहूं लेकिन कोई और बच्चा उससे किसी और तरह सॉल्व करना चाहे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या होता है, देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स समटाइम्स। And then if I have a reason to why I chose that style of solving the problem, then I would get those marks for my reason. So the reason can be different from, maybe 2 or 3 children can differ in the way that they look at the problem. So maybe हो सकता है कि कुछ बच्चे एक तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें और कुछ बच्चे डिफरेंट तरह से सॉल्व करें और उन सबके पास अपने अपने रीजंस हो। सो अगर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इट शुड वर्क फॉर यू। ठीक है। सो लुकिंग एट दिस यू कैन सी दैट द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो एसएनसी में दिया हुआ है ना, वो ये कहते हैं कि नंबर एंड ऑपरेशंस क्योंकि बहुत ही बड़ा डोमेन है और बहुत जरूरी है कि फंडामेंटली स्टूडेंट्स की ये डोमेन जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो 50% वेटेज जो है वो करिकुलम में नंबर एंड ऑपरेशंस को ही है। जैसे नंबर एंड ऑपरेशंस में क्या आ रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड, जीरो से लेके एनी नंबर तक डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड्स। और फिर उसमें नंबर्स के बारे में जानना 40% वेटेज है। उन जो चीजें आपने जानी है, कॉन्सेप्ट्स जो जाने हैं उनको अप्लाई करना 40% है और रीजनिंग जो है वो 20% है। सो व्हेन यू लुक एट नंबर एंड ऑपरेशंस ओनली, तो उसमें जो इसकी डिवीजन है वो 20% जो है वो नोइंग को मिल रही है। इस 50% को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि 20% वेटेज जा रही है नोइंग को, 20 जा रही है एप्लीकेशन को और 10 जा रही है रीजनिंग को। और ये टोटल मिला के 50% हो जाता है करिकुलम का के नंबर ऑफ ऑपरेशंस का हिस्सा। जो मेजरमेंट है यानी बच्चे जो हैं हैंड स्पैन के साथ, फुट स्पैन के साथ चीजें नाप सकें, फिर एक दूसरे की कंपैरिजन में चीजों को मेजर कर सकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ आए। सो 6% जो है वो नॉलेज के ऊपर है, 6% जो है उस नॉलेज को अप्लाई करना यानी एक्चुअल में रियल में मे बी थ्रेड के साथ नापना, मे बी इंच टेप के साथ नापना। और रीजन जो रीजनिंग है उसको 3% दिया गया है। सो मेजरमेंट का जो कंटेंट नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन और रीजनिंग के साथ जब आप लेके चल रहे हैं तो 15% जो है आपका करिकुलम वो मेजरमेंट को फोकस कर रहा है। एंड देन ज्योमेट्री के अंदर
ज्योमेट्री क्या होती है जी? शेप्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, और डिफरेंट शेप्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो 25% कंटेंट जो है वो ज्योमेट्री के ऊपर है, जिसमें नोइंग का पार्ट 10% है, एप्लीकेशन का पार्ट 10% है और 5% है रीजनिंग का। इस तरह से ये 25% टोटल बनता है ऑफ द इंटायर करिकुलम. So looking at data handling, now this is very very important because जब नंबर्स जो हैं वो आपको सेंस ना बनाए तो उनका फायदा नहीं है. सो जितना आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं आपको उसको समझना और अप्लाई करना और उससे इन्फ्रेंसेस निकालना, अंदाजे लगाना, फोरकास्टिंग करना, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं आज की दुनिया में. सो डेटा हैंडलिंग का 10% है, 10% जो है वो नोइंग के ऊपर है, वो देन 4% नोइंग पे है, 4% एप्लीकेशन पे और 2% रीजनिंग पे है. इस तरह से ये 10% ऑफ द इंटायर करिकुलम जो है वो नंबर्स डेटा हैंडलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सो इसी तरह पेपर पैटर्न जो हमारा दिया हुआ है सिंगल नेशनल करिकुलम में, तो नोइंग का जो डोमेन है उसको 40% वेटेज दी गई है और 40% जो सवाल होंगे नोइंग के वो इस तरह से आएंगे. एमसीक्यूज आप दे सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हो, मैच द कॉलम्स दे सकते हो, सॉर्टिंग क्वेश्चंस दे सकते हो. 40% जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो जरा लंबे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे सोचेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे what operations they want to do and then they will apply that knowledge effectively. इस एरिया के इस डोमेन को 40% वेटेज एग्जामिनेशन में भी देनी है. और सेक्शन सी के अंदर आपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस देने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल कंप्यूटेशंस वाले देने हैं ताकि बच्चे जो है वो ये जान सकें कि कोई भी चीज हमने की है तो उसका वजह क्या, रीजन क्या है. सो डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ ना आ रही हो कि यार हमें कैसे करना पड़ेगा. OUP has generated every possible help that you can even think of. So we have actually developed materials for you for assessments also, for these constructed response questions, problem solving, for these MCQs, fill in the blanks, matching the columns, sorting the questions. ये सारा काम हमने आपके लिए already तरतीब दे दिया है. आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप उसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं. we need to be very cautious that competencies जो है वो सारे एरियाज की कवर हो. ऐसा ना हो कि कोई कॉम्पिटेंसी रह जाए असेसमेंट के टाइम पे. सो एज यू कैन सी मैथ 6, 7 और 8 जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और उसकी एनओसी हमें बगैर चेंजेस के ही मिल गई है. सो द सीरीज इज इन टोटल प्रोग्रेशन and looking at the strategies, हमारी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीम है वो आपके लिए कस्टमाइज्ड फेस टू फेस और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है आपको ऑफर करती है. आपको जो भी सूट करे आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं. और हम ये जो स्ट्रैटेजीज हैं इनको इफेक्टिवली किस तरह से पढ़ाना है आपने, इसमें आपकी मदद के लिए हम ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है आपको हेल्प आउट करेंगे विद द कंटेंट जब आप उसको पढ़ाना शुरू करेंगे. सो सबसे पहली अप्रोच जो मैथ्स के अंदर आपने फोकस करनी है दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच. डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच में क्या होता है कि आप बच्चों को करके दिखा रहे होते हैं. सो चिल्ड्रन नीड टू मूव फ्रॉम कंक्रीट एक्सपीरियंसेस टू विजुअल, सिंबॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटीज. और अब देख लिये आप यहाँ पे बच्चे जो है हाथों को इस्तेमाल करते हुए हैंड स्पैन की बात कर रहे हैं या फुट स्पैन की बात कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उनको करके दिखाते हैं. कभी कभी हम स्ट्रिंग्स के साथ मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट चीजों की और उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं. आहिस्ता आहिस्ता हमें सिखाते हैं कि जी मेजरमेंट जो है
उसका कॉन्सेप्ट किस तरह से जो है वो उनको सिखाया जाना चाहिए। और फिर जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर की बात करते हैं, फिर आपके घर और स्कूल के फासले की बात करते हैं, और फिर हम उसको इन द बिगर सिनेरियो लेके जाते हैं कि पाकिस्तान एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कितना दूर है और कितना टाइम लग जाता है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय वाटर, और किस तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या क्या अवेलेबल हैं। सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली gradually introduce them with the concept of measurement, distance, time, looking at the inquiry based learning. अच्छा, अब बहुत सारा फोकस जो है अब किया जा रहा है कि आपने खुद से रोट लर्निंग नहीं करानी, बल्कि ऐसे स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो इंक्वायर करें about a certain situation, or through their own experiences children should be able to explore the idea of mathematical concepts, whether it be experiential counting with numbers, or whether they want to explore the idea of adding or subtracting, और एक concept जो है उसको लेके 2, 3, 4 मुख्तलिफ तरीकों से बच्चे जो हैं अपने experiences share कर सकते हैं. They can inquire about the content, they can ask questions and explore the idea of numbers, allowing them to understand how numbers are formed. So again इसके अंदर एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोमिनोज यूज हो रहे हैं, एंड देन ये नंबर इक्वेशन भी यूज हो रहा है. यहाँ पे एक कार्ड यूज कर रहे हैं विद काउंटर्स ऑन इट. यहाँ पे 5 इन नंबर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखी हुई है. सो यहाँ पे बच्ची जो है वो अपने फिंगर्स को यूज कर रही है टू स्टिमुलेट हर ब्रेन. सो यूजिंग दीज NLP, natural language processing, is the modern way of going about it. What happens is that आप इशारों को integrate करते हैं with the concept of adding and subtracting, and through those signals you are able to actually activate your brain cells, और उससे आपकी जो आई वुड से रिटेंशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है. So that's what you need to do, that you need to actually use the NLP, natural language processing, and total physical interaction, coupled with total physical interaction where children use their body parts and their expressions to explain the concept of addition or subtraction or counting or any other concept that is being taught. Looking at the brainstorming approach. अब इस approach के अंदर आपने बच्चों को allow करना है कि वो आपसे हर आइडिया जो उनके दिमाग में आ रहा है वो शेयर करते जाएं, और आपने एक माइंड मैप बनाते जाना है. उसमें कुछ जो उनके आइडियाज होंगे वो बहुत जबरदस्त होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो जिससे आप एग्री नहीं करते, लेकिन आप उनको भी लिख दें ताकि उनको एक फ्रीडम फील हो कि यस वी कैन share the ideas that are coming to our mind, and then each and every idea is then discussed with all of them, taking their view on it. So basically हो क्या रहा है कि बच्चे जो है वो खुद से suggest कर रहे हैं, and then when they suggest it, so they own their own ideas, and when they own their ideas and other children discuss the ideas put forward by any of the class fellows, they feel that they it's coming from them. So उनको एक ownership की feeling होती है, और ये ownership जो है ये उनके लिए बहुत ही जो है फायदेमंद है.
क्योंकि जब आप ओनरशिप देते हैं स्टूडेंट्स को तो वो ध्यान से सुनते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच जो है ये बच्चों की परसेप्शन डेवलप करने के लिए, उनकी थिंकिंग को इन टर्म्स ऑफ मैथ्स लॉजिकल करने के लिए इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव अप्रोच. Then the next is the math lab approach. Now math lab approach के अंदर अभी आप देखेंगे, I'll be telling you about the manipulatives. Generally it is required for schools to set up their math lab where it's filled with all these manipulatives which can be used so that children are able to discover the facts through the use of these manipulatives while collaborating with each others in different activities. So activities ऐसी होंगी जिसमें एक से ज्यादा बच्चे, 2 या 3 या 4 का ग्रुप होगा और manipulatives होंगे उनके पास, वो मैनिपुलेटिव्स इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हुए खुद से डिस्कवर करेंगे different facts while they are collaborating in the math lab. Then discovery approach. Now this approach is extremely important because अब जमाना rote learning का बिल्कुल भी नहीं है. हमारा पूरा फोकस ये है कि बच्चे inferences निकालें based on their previous knowledge. Also हमारी activities ऐसी होनी चाहिए जो पिछली नॉलेज बच्चों को ऑलरेडी हासिल है, थोड़ा सा उसके ऊपर बेस करते हुए नई कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो और नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेस करें पिछले कॉन्सेप्ट्स जो ऑलरेडी उनको दिए जा चुके हैं उनके ऊपर, सो दैट दे आर एबल टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, हाउ देयर knowledge which they already possess can be used effectively in another concept. So हो क्या रहा है कि वो डिस्कवर कर रहे हैं कि यार यही नॉलेज जो मेरे पास पहले से थी ये अब मुझे फायदा दे रही है कि मैं एक और कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कवर कर रहा हूँ. सो ये जो एरिया है रिमेम्बरिंग ऑफ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग ऑफ और कॉम्प्रिहेंशन, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को फोकस करता है. ये भी करना जरूरी है मैथ्स में. ऐसा नहीं है कि हम हर चीज ही सिर्फ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीजों का याद करना भी जरूरी है. बट अब ज्यादा फोकस एप्लीकेशन से आगे हो गया है. अप्लाई करना आना, मेकिंग चार्ट, सॉल्विंग, कैलकुलेटिंग, और फिर एनालिसिस का पार्ट. अब एनालिसिस में टेकिंग द इंफॉर्मेशन अपार्ट एंड डिटर्मिनिंग द फैक्ट्स एंड ओपिनियंस. फिर कंपेयर करो, कंट्रास्ट करो और कैटेगराइज करो और ऑर्गेनाइज करो इंफॉर्मेशन को. और फिर now that you have analyzed the situation effectively, now you are in a position to evaluate, critique karna. You can judge the outcomes, you can predict कि आगे क्या होगा, and then creating or synthesizing. So putting the information together, asking the students to come up with alternative ways, inventing a solution to the problem, and then revising the method. So you can build or you can construct. ठीक है. सो वहां पे आपका जो है ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स फोकस हो रहे होते हैं, जहां पे बच्चे जो हैं वो नए नए तरीके सीख रहे होते हैं एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के. ठीक है. सो अब क्या हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे तरीके हो गए हैं सो दैट बच्चे इन्फर कर सकें और अपनी प्रायर नॉलेज को यूज करते हुए नई कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर कर सकें देयर ओन सेल्व्स. सो नाउ देन वी हैव प्रैक्टिकल वर्क अप्रोच, जहां पे हम बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे डोमिनोज यूज हो रहे हैं, बच्चे खुद से कार्ड्स बना रहे हैं. ये डोमिनोज भी बच्चे खुद से बना सकते हैं, लो कॉस्ट मटेरियल्स यूज कर सकते हैं. एंड देन यू कैन सी दीज क्लिप्स. Now the concept here is to put 6 clips here and 4 clips here, और ये एक number equation के साथ relate कर रहा है. So now this manipulative is again made by them, so they can now own this, and इस ownership से
जो है उनकी रिटेंशन जो है वो और ज्यादा डीपर होगी. सो चिल्ड्रन कैन be assigned activities related to real life also, and they can very easily make a connect, और एक यूजफुल कनेक्शन बनाते हुए वो ये कॉन्सेप्ट 10 बनाने का जो है वो जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अच्छा आपने गार्डन में कितनी बर्ड्स देखी, कितनी इस तरफ बैठी हुई थी और कितनी उस तरफ बैठी हुई थी, टोटल कितनी हो गई, and this number equation can be then formulated. Now the most important area which I feel is the problem solving approach, which is basically not only in maths but in every sphere of life. जिंदगी में भी यही होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं और हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है थ्रू वेरियस वेज. सो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन. यहाँ हमने प्रॉब्लम की वजह नहीं समझी और जल्दी से हम सोल्यूशन की तरफ चल पड़े तो क्या होगा, ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगी. सो प्रॉब्लम को समझना, understand करना, reading the problem carefully, understanding what the issue is, and then trying to solve with the help of data. So सबसे important first step problem solving में है कि बच्चों को एक आदत डलनी चाहिए कि वो problem को समझें. When they are able to read it carefully and understand the facts, then they need to plan how to solve it. अब solving के भी बड़े तरीके हैं. They can draw pictures, or they can make number equations, or they can use counters, or they can use dominoes. तो वो different तरीके हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो. ये आपके प्लानिंग के हिस्से में आएंगी. Then what you need to do is that you have to convert these drawings into number sentences. जब आप number sentences बना लेते हैं और वो number sentences सही हो जाते हैं, फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर अपने सॉल्यूशन को चेक करने के लिए आप इसको टेस्ट में डालते हैं. जब टेस्ट में डालते हैं और आपका आंसर आपके हिसाब से सही आ जाता है, that is the point, that is the time when you are sure that your process of problem solving was effective. So as you can see here, the problem solving loop, you identify the problem, फिर आपके पास कुछ information होती है, उसको आप explore करते हो, then you select the best option that you have, then you build the test idea, and then you evaluate the results. In case the results are not up to what you were thinking, you can go back to the data and select some other ways of solving that problem. Now looking at the कोऑपरेटिव लर्निंग, अब बहुत ज्यादा काम जो है वो मिल के करने वाला हो चुका है. सो पहले क्या होता था कि बच्चे जो हैं वो अकेले अकेले भी काम करते थे, बट नाउ द करिकुलम इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो कोलैबोरेटिव होनी पड़ेंगी. सो and why is that? Because we are preparing the children to operate in the world effectively. And when you look at the world, there is no one man show. आपको collaborate करना है, आपको cooperate करना है एक दूसरे के साथ, और आपको मिलके काम करना है. So इस चीज की तैयारी जो है ये बचपन ही से होना जरूरी है. That is why आपके curriculum के अंदर बहुत सारा जो focus है, that is on cooperative learning, where children can be assigned group tasks to observe. ये जैसे आप एक सिंपल सी एक्टिविटी देख रहे हैं यहाँ पे, एक आपके आर्म की मदद से द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, और फिर उसी को हम देख रहे हैं कि हम बिल्डिंग्स के अंदर किस तरह से in terms of bigger monuments आप एंगल्स को किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं. and then it can be a collaborative task for children to be able to observe. So the idea of observation is focused here, and how they can actually make connections to their geometric knowledge.
Looking at the teaching and learning resources for maths, जनरली थोड़ा सा चेंज अब किताबों में आया है, और वो चेंज एज पर द SNC ये कि कंटेंट लिस्ट जो है अब हर किताब की, आप देखोगे कि यूनिट के नाम जो हैं वो SNC ने मस्ट कर दिया है कि वही रहेंगे। तो चाहे आप ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ा रहे हो या कोई और किताब पढ़ा रहे हो, यूनिट नेम्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम। SLOs शुरू में आ चुके हैं। एंड देन हमने ये किया है कि जो हमारी किताब के अंदर मटेरियल ऐसा था जिसमें एक्टिविटीज करनी थी, उसके लिए हमने एक सेपरेट मैथ लैब एक्टिविटी हैंडबुक बना दी है, ताकि बच्चे जो हैं उसके अंदर से एक्टिविटीज जो हैं वो इफेक्टिवली कर सकें और उन्हीं किताबों को एज मैनिपुलेटिव्स भी इस्तेमाल किया जा सके। सो बहुत सारी जो हमने जो नॉलेज थी वो इधर से उधर मूव नहीं की, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जहाँ पे जरूरत है सिर्फ वही चेंज किया जाए, क्योंकि हमारा कंटेंट ऑलरेडी जो है वो फोकस कर रहा है 21st सेंचुरी स्किल्स और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को, तो उसको हमने एज पर द SNC रिटेन कर लिया है। और थोड़ी सी एडिशनल हमने चीजें भी डाली है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आज का बच्चा ना सिर्फ SNC लाइन कंटेंट पढ़े, बल्कि दुनिया में कहीं भी किसी भी किस्म का एग्जाम देना पड़े तो उसकी जो बेस है वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो उसको प्रॉब्लम ना आए। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और देन ऑप्शंस जो है वो ABCD के फॉर्म में हमने चेंज कर दिए, और वो भी इसीलिए किए क्योंकि ग्लोबली इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो उसको कम नहीं किया गया, बिकॉज वी वांट दैट यू हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जिसको कि आप क्लास वर्क या होमवर्क या प्रैक्टिस में दे सकें। सो एक अब टीचर मैनुअल भी हमने आपके लिए तरतीब दिया है, जो कि द गुड न्यूज इज दैट इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। आई कैन जस्ट शो यू इन अ व्हाइल। और वो रियल लाइफ टाइज इन जो है वो फोकस कर रहा है, जिसके अंदर यू कैन एक्चुअली स्टार्ट द यूनिट्स विद लेट्स बिगिन आइडियाज और लेट्स टॉक मैथ्स। ये दो एरियाज हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग ओपनर्स मिलेंगे क्लास के, ताकि बच्चों की क्यूरियोसिटी को आप फोकस कर सकें। एंड देन प्रैक्टिस शीट्स भी हैं, ताकि आप जो कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। सो पहले चैप्टर का नाम नंबर्स था, अब वो जो है होल नंबर्स हो गया है। फिर नंबर ऑपरेशंस वही रहा, मेजरमेंट, लेंथ एंड वेट था, अब लेंथ अब डिफरेंट हो गया है, इट्स बिकम लेंथ एंड मास। फिर मनी का चैप्टर वैसे ही रहा है। देन टाइम एंड डेट, अब सिर्फ टाइम हो गया है। ज्योमेट्री, शेप्स, पैटर्न्स, पोजीशंस, अब खाली ज्योमेट्री हो गया है। रिव्यू एंड असेस, अब खाली रिव्यू एंड असेस हो गया। सो इस तरह से मैथ्स वाइज में चेंजेस आए हैं। पहले रिव्यू एंड असेस 1 था, फिर नंबर्स था, अगेन नंबर्स होल नंबर हो गया है, नंबर ऑपरेशन हो गया है। देयर हैज बीन चेंजेस इन द चैप्टर। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पेज नंबर हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें डिलीट हुई हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द SNC। सो इस तरह से ग्रेड 5 तक जो है हमने इसको 100% अलाइन कर दिया है। सो लुकिंग एट द मैथ लैब एक्टिविटी बुक, आप देख सक रहे हैं कि मैथ लैब के लिए उन्होंने कुछ मैनिपुलेटिव्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका जो मैथ लैब एक्टिविटी एरिया है उसके अंदर इस किस्म की चीजें आप रख सकते हैं। इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आप सारी चीजें रखें, लेकिन अगर आप रख सकते हैं तो जितनी रख सकते हैं, या कुछ लो कॉस्ट बनाना चाहे बना सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं इन मैनिपुलेटिव्स को इफेक्टिवली इस्तेमाल करके कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज में एंजॉय कर सकें। सो उन्होंने बताया कि एरिया मॉडल होना चाहिए, अरे एंड ओपन अरे होना चाहिए, बैलेंस पैन या बीम जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं होना चाहिए। देन बेस 10 ब्लॉक, ये बेस 10 ब्लॉक्स हैं। कैरल डायग्राम, अच्छा ये कैरल डायग्राम हमारी जो है मैथ लैब एक्टिविटी बुक के अंदर भी आपको ये
प्रिंटेबल फॉर्मेट में चीजें मिल जाएंगी, आप इसको काट कर लैमिनेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन ट्यूब लिंकिंग, इसके अलावा कुजिनियर रॉड्स हैं। अच्छा, अब ये रॉड्स जो है जी, हर कलर का अपना एक जो है सिग्निफिकेंस है, और ये जो है ईच कलर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेंथ एंड कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो ये काफी जगहों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। देन डाइस है, डोमिनोज है, फ्रैक्शन ब्लॉक्स है। अब ये फ्रैक्शन ब्लॉक्स भी बहुत मजे के हैं। ये छोटे, ये जो एक रॉड आप देख रहे हैं 1 का, इसके पोर्शंस नहीं है, लेकिन ये जो पिंक वाला है ये 2 में डिवाइड हो जाता है, ये जो 1/3 है ये 3 में हो जाता है, ये येलो वाला जो है ये 4 में हो जाता है। तो इसी तरह द आइडिया ऑफ फ्रैक्शंस जो है वो 1 होल से कंपेरेबल फ्रैक्शंस हैं। सो देन फ्रैक्शन सर्कल्स हैं, और ये आप खुद से भी बना सकते हैं, फोम शीट से भी। 1 फुल होल सर्कल, 10 हाफ्स, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और पोर्शंस भी हैं आपके पास, फ्रैक्शन पीसेस। देन frames, using any type of counters to fill in the frames as needed, then geoboards, geometric solids इस तरह से, और geostrips, and then hundredth chart। अब ये 100 में डिवाइड हुआ हुआ है ये चार्ट, और 100th चार्ट जो है ये स्क्वायर में जो आप देख रहे हैं 100 पोर्शंस, और जो सर्कल में देख रहे हैं ये भी 100 सर्कल है। सो ये 100 पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सो लुकिंग एट पैटर्न ब्लॉक्स, ठीक है। पेंटोमाइम्स, अब ये मजे की एक चीज है, 5 स्मॉल स्क्वायर्स को मिलाकर ये हर पोर्शन बना हुआ है, और आप देखेंगे कि हर पोर्शन दूसरे से डिफरेंट है। और ये एक मजे की गेम है जिसके अंदर पेंटोमाइम्स के अंदर एज टू एज ज्वाइन हुआ है, और ये 12 पॉसिबल पीसेस का सेट होता है। देन देयर इज पॉलीड्रॉन्स। अब polydrons are geometric pieces that snap together to build various geometric solids as well as their nets. So equilateral triangle, isosceles, and then right angle, square, rectangle, pentagon, hexagon, जो different polydrons जो हैं आप यहाँ पे देखते हैं। फिर power polygons, अब ये भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं, सॉर्टिंग, पेरीमीटर के लिए यूज हो सकते हैं, फ्रैक्शंस के लिए, और 2D शेप्स, और फिर डिफरेंट किस्म की और शेप्स के बारे में आप इसकी मदद से बना सकते हैं। सो काउंटिंग फ्रेम्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीड्स इस्तेमाल हुए हैं, रेड एंड व्हाइट बीड्स, और ये डिफरेंट कलर्स में जो है वो अवेलेबल होते हैं। एंड देन दिस इज ट्रंडल व्हील, ये ज्यादा लंबे जो डिस्टेंसेस होते हैं ना, इसकी एक पूरी रोटेशन 1 मीटर को कवर करती है। So with a click, you can actually note the rotations and see कि कितना distance। So looking at the math lab activity handbook, now this is a beautiful book which will help you with the mathematical concepts very effectively. So looking at the math lab activity book, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसके फीचर्स। SLOs जो हैं वो क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए एक्टिविटीज के बहुत शुरू में दिए गए हैं, और ये नेविगेशन आसान करने के लिए SNC कंटेंट बेस्ड है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं देखा जा रहा है इसमें, बल्कि SNC बेस्ड कंटेंट पेजेस देखे जा रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो कि आपने सारे SLOs कैसे कवर करने हैं। एक्सटर्नल रिसोर्स एंड में दिया गया है, ताकि SNC अलाइनमेंट जो है वो आपको आसानी से बताई जा सके कि किन वेब लिंक्स के थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स कर सकते हैं। एंड देन देयर आर कीज टू गाइड। अब इसके अंदर क्या है कि एक्टिविटी जो है सिंगल पर्सन की है या ट्विन है या ग्रुप की है, तो ये आपको एक की के जरिए बताया जा रहा है कि इसमें आपने मैनिपुलेटिव्स यूज करने हैं या इसमें कलर पेंसिल्स करनी है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड देन CPA एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच and cognitive domains of SNC for assessment and progress, and also awareness of holistic targets. So targets must be real. You must not set targets which are non-achievable, और थोड़ा सा उसके अंदर चैलेंज होना जरूरी है। So as you can see, navigation इस तरह से है SNC के हिसाब से, ताकि SNC के साथ क्रॉस रेफरेंसिंग करना आपके लिए आसान हो जाए।
इस तरह से ये की दी हुई है। की के अंदर आप पहले से ही देख रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चा बना हुआ है, इसका मतलब है सिंगल चाइल्ड एक्टिविटी। जहाँ पे 2 बने हुए हैं, इसका मतलब है पेयर्ड है। फिर 4 बच्चे बने हुए हैं, इसका मतलब है ग्रुप है। और फिर यहाँ पे एक होल क्लास एक्टिविटी बताने के लिए टीचर बनाई हुई है। देन मैनिपुलेटिव्स रिक्वायर्ड एंड कलरिंग शेडिंग एक्टिविटी। एंड देन जहाँ पे कैंची नजर आ रही है, दैट मीन्स यू कैन जस्ट कट इट आउट and this sheet can be laminated. So cognitive domains, देखो आपको जो जैसे परेशानी शुरू में थोड़ी थोड़ी हो रही होगी शायद कि अच्छा यार हम कैसे जानेंगे कि एक्टिविटी जो है वो किस तरह से इन डोमेन्स को फोकस करिए। तो पहले ही से हमने आपकी हेल्प के लिए बता दिया कि ये जो एरिया है ये नोइंग को फोकस कर रहा है, ये एप्लीकेशन को और ये रीजनिंग को, ताकि आप होलिस्टिक टारगेट्स बना सकें। ठीक है। MATLAB also allows students to use math rather than learn it. So अब हमने इसमें रट्टे तो लगाने नहीं है, तो हमने एक्टिविटीज ऐसी डिजाइन की, जैसे अगर आपका नाम आयशा आरिफ किचलू है तो आप देखेंगे कि आयशा के अंदर ए के अंदर क्या क्या एंगल्स आ रहे हैं। इसी तरह इस बच्ची का नाम सारा तारिक सलीम है, तो ए के अंदर कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, एल में कौन से आ रहे हैं, ई में कौन से आ रहे हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ये सेशन चल रहा है। Apologies, I thought it is from your school, from your university. Okay. So looking at the activities, here you can see there is a rounding off activity. There are symbols in the corner which show you whether it's an independent work या group work है, या आपको किस तरह से ये एक्टिविटी करनी है। SLOs पहले से मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे CPA अप्रोच, कंप्लीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच पे बेस करते हुए एक्टिविटी बनाई हुई है, जहाँ पे आपको मटेरियल्स नजर आ रहे हैं, in which activities then are designed in such a way that you make a number sentence और फिर आप उसको जो है सॉल्व करते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक वैरायटी ऑफ वेज से आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। इसमें काउंटर्स भी यूज हो सकते हैं, इसके अंदर आप बात कर सकते हो ऑफ वेरियस ways in which you can solve this concept of shopping list under 10 items, और बहुत सारे और तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये आपकी शीट है, इसके अंदर कलरिंग हो सकती है, इसके अंदर मैनिपुलेटिव्स यूज हो सकते हैं। एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ देख रहे हो आप कि ये जो शीट है इसको हम काट करके, एक्चुअली सर्कल्स के अंदर काट कर इस तरह से काउंटर्स बना, लैमिनेटेड काउंटर्स भी बना सकते हैं। अगर एक्टिविटीज इस तरह की डिजाइन करें कि स्टेयरकेस के ऊपर लगा लें, सो मिसिंग नंबर्स भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 60 के बाद यार देयर इज समथिंग मिसिंग हियर, फिर 62, 63, 64 एंड देन देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। सो कैसे असेंड कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और हम नंबर लाइन को भी साथ जो है कॉन्सेप्ट को ज्यादा रीइंफोर्स करने के लिए बच्चों को यूज करा सकते हैं। So looking at these activities, now here you can see आपको linear rods या counters या dominoes या dice in addition equations के लिए use कर सकते हैं। So many manipulatives, so these can be really interesting for the students to explore। और ये अकेले भी बच्चे कर सकते हैं different तरीकों से, या फिर हम different groups of children को different ways assign कर दें, ताकि कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हो, कुछ वैसे कर रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो, और फिर बच्चे देखेंगे यार यही एडिशन इक्वेशन जो है यूजर रॉड से भी हो सकती है, काउंटर से भी हो सकती है, और डाइस से भी हो सकती है, और डोमिनो से भी हो सकती है। सो एज यू कैन सी हेयर वी हैव मैथलैब एक्टिविटी के अंदर एसएनसी सजेस्टेड वेब लिंक्स। तो जितने भी एसएनसी ने वेब लिंक्स बताए हैं वो पर्टेनिंग टू एवरी कॉन्सेप्ट हमने मेंशन किए हुए हैं in this supportive document. So looking at the measurement, अब ये बड़ा ही important area है जहाँ पे आपने
ये देखना है कि बच्चों के जो असेसमेंट है टीचर्स कैसे करेंगी। सो नो वरीज देयर, वी आर देयर फॉर योर सपोर्ट। असेसमेंट प्रैक्टिस बुक हमने एक ऐसी तरतीब दी है जो परफोरेटेड है, यानी कि उसके अंदर से पेजेस कैन बी टॉर्न आउट। So a teacher can use one copy to teach a whole class by tearing out selected pages and copying them. So हर बच्चा जो है वो उसके लिए अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है। सो हमने फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए रखी है क्योंकि हर तरह के स्कूल्स और क्लासरूम्स होते हैं, तो आप उसको जो है कम बुक्स से भी अपना काम चला सकते हैं। सो वन ऑफ आवर गोल वाज टू फैसिलिटेट टीचिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लासरूम्स, catering to whatever kind of teacher we are trying to access, keeping in mind that they will differ. So होता क्या है कि आप टीच करते हो, फिर ड्यूरिंग दैट टीचिंग आप बीच में असेस करते हो, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। कई दफा आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कर रहे होते हैं कि बच्चों को ये आता है या नहीं आता, और फिर आप बच्चों को लर्न कराते हैं। सो ये फिर उसके बाद जब आप लर्न कराते हैं, देन जब आप मजीद उनको कुछ पोर्शन जो है एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आपकी टीचिंग का एरिया आ जाता है, और फिर आप मजीद उनको असेस करते हैं। सो ये प्रोसेस जो है इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट विल कीप गोइंग, एंड ये फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू आउट द टर्म होती रहेगी। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टर्म जिस तरह की असेसमेंट हम करते हैं, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, इट्स कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। तो आपके पास इस बुक के अंदर दोनों ही सूरतों वाली असेसमेंट जो है उसके मौके जो है हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए दे दिए हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे नोइंग, एप्लीकेशन और रीजनिंग के पोर्शंस जो हैं फर्क जगहों पे एड्रेस हो रहे हैं, और ये जो असेसमेंट शीट्स हैं ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना दी गई हैं। So either you can make your own assessment sheets based on these sheets, or you can use these right away. So दोनों तरह हो सकता है। तो आप इससे मुतालिक मजीद और किस्म की भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, या यही एक्टिविटीज भी आप यूज कर सकते हैं। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद ये है कि हमने एक गोल सेट किया, और हर थोड़ी देर बाद हम उस गोल को कितना अचीव कर पाए हैं उसका अंदाजा लगाना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल की तरफ जाने के लिए वो जो लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस है उसको चलाते जाएं। और थ्रू असेसमेंट हमें हर वक्त पता चलेगा कि अच्छा जी अब क्या लर्न कराना है, अब क्या टीच करना है, अब कैसे असेसमेंट होनी चाहिए। सो ये असेसमेंट्स करने के लिए आपको बेशुमार क्लास टेस्ट प्रोवाइडेड है, आपको वर्कशीट्स प्रोवाइडेड हैं, आपको क्विजेस डिजाइन करके ऑलरेडी इस किताब में दे दिए गए हैं। क्लास एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स जो है एक्सटेंडेड एक्टिविटीज आपको सजेस्टेड हैं, और होमवर्क के बारे में भी बताया गया है। एंड दिस इज बेसिकली लिफ्टेड फ्रॉम SNC document page 76. So focusing on the formative assessments, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मीनिंगफुल वर्क सैंपल्स हमने बनाए हैं ताकि शॉर्ट पोस्ट टेस्ट जो है आप ईच कॉन्सेप्ट के बारे में आप बच्चों से कर सकें। सो ये जो पेज है ये असेस करता है कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स कि बच्चे राउंडिंग ऑफ जो है वो कर पा रहे हैं या नहीं, या कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस कितना उनको समझ आया हुआ है। सो लुकिंग एट दीज पेजेस, दीज विल असिस्ट। अच्छा, आप शुरू में ना आप देख रहे हो कि यहाँ पे SNC अलाइनमेंट की जो है हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि SLO सीरियल नंबर क्या है, ताकि टीचर को एग्जैक्टली पता चल जाए कि वो क्या असेस करने लगी है। सो अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड बाय SNC। सो नॉलेज वाला एरिया जो है यहाँ पे ये आप फोकस करें, और ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ताकि फ्यूचर में स्कैफोल्डिंग जो है आप इफेक्टिवली कर सको। सो लुकिंग एट द टीचर्स मैनुअल, ये आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक मैनुअल हमने बनाया है जो कि लेसन प्लान्स आपको देगा, अंडरस्टैंड करने के लिए आसान होगा। SLOs का डिटेल जो है वो लेसन प्लान्स के साथ आपको मिल रहा होगा, बैकग्राउंड नॉलेज आपको मिलेगी, और लिस्ट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज भी हम दे रहे हैं। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट सर्व एज इंटरेस्टिंग लेसन ओपनर्स, और फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी के लिए हम नए कॉन्सेप्ट्स को भी इंफ्यूज कर रहे हैं।
एक सीक्वेंस आपको मिलेगा एक्टिविटीज का, और बहुत सारा क्वेश्चन बैंक होगा जिसके अंदर आप इंटरैक्टिव क्विजेज और अच्छे मजे मजे की एक्टिविटीज के थ्रू क्लासरूम एनवायरनमेंट को हैप्पी और फन क्रिएट कर सकते हैं. देन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजीज फॉर असेसमेंट and including details on how learning materials and activities can be adapted to suit the learning of students with disabilities. So ऐसा है कि in case अगर कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा है उसको भी हम इसके थ्रू कवर करेंगे. एंड दिस इज अगेन लिफ्टेड फ्रॉम SNC डॉक्यूमेंट. ठीक है. सो SLOs पे शुरू में आ जाएंगे आप. देख रहे हैं कि हमारे मैनुअल में इस तरीके से शुरू में SLOs सारे चैप्टर्स के दिए हुए हैं. और लेट्स बिगिन के टाइटल से. The manual provides intriguing topic openers and specific instructions for classroom activities and exercises. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइट पे एक मार्जिन रन कर रहा है जिसके अंदर हमारे जो SLOs हैं वो दिए गए हैं, और फिर यहाँ पर हमने टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है हर एक्टिविटी का कि तकरीबन इतना वक्त लगेगा इस एक्टिविटी को. देन देयर इज अ कंफ्यूजन बार. ये मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है. और इसके अलावा हमने रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स भी दी हुई है कि अगर कोई टीचर मजीद और जानना चाहे इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो वो कैसे इसको करे. ना ये कंफ्यूजन बार जो है ये SNC ने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को सेल्फ असेस करें, बच्चे. ठीक है. वो ये बताएं कि क्या उनको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आया, नहीं आया, थोड़ा सा समझ आया. अगर बिल्कुल नहीं आया तो वो 1 पे टिक करेंगे. अगर जरा सा समझ आया तो 2 पे. अगर दरमियाना सा समझ आया तो 3 पे. अगर अच्छा समझ आ गया है तो 4 पे. और अगर बहुत ही जबरदस्त समझ आ गया तो 5 पे. सो दिस विल गिव देम एन आइडिया ऑफ हाउ दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. और टीचर को भी पता चल जाएगा कि उनका जो पढ़ाना था इस कॉन्सेप्ट का वो कितना इफेक्टिव था, कितने बच्चों ने ये कंफ्यूजन बार जो है किस तरह से फिल आउट किया. और there is also a small section at the end of each chapter that will help teachers self assess. ठीक है. So आपकी असेसमेंट के लिए भी यहाँ पर सपोर्ट है. So looking at the Oxford Owl, ये हमारी इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके पास ये वीडियोस होंगी. www.oxfordowl.com. ये आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट की वीडियोस देगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं. और ये आप क्योंकि कोविड था तो ये हमने फ्री कर दिया हुआ है आपको. सो दिस इज द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटरैक्टिव एक्टिविटीज. और अगेन हमारी जो बुक है उसकी टीचिंग गाइड भी है आपको सपोर्ट करने के लिए. और आप ये देख रहे हैं कि यूं बुक पेजेस है हमारे, और ये टीचिंग गाइड के अंदर सपोर्ट है. और इस तरह से ऑक्सफोर्ड आउल के अंदर वही आइडिया ऑफ टॉल एंड शॉर्ट का लेकर ये इंटरैक्टिव एक्टिविटीज है ऑक्सफोर्ड आउल में. सो द एक्टिविटीज आर नॉट वेरी डिफरेंट. चाहे वो प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल है लेकिन एक्टिविटीज ऐसी ही प्लान की गई है जो किताब से टोटली रिलेटेबल है. और इस तरह से मेजरमेंट ऑफ हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन है, ऑपोजिट्स, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, कंपैरिजंस हैं. और इस तरह से हमारी वर्कशीट्स भी हैं. देन कंपैरिजन ऑर्डर 1, 2 एंड 3. और इस तरह से हमने मनी के एतबार से और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के एतबार से व्हाट्सएपेबल वीडियोस भी बनाई हैं जो हम आपके स्कूल्स के साथ शेयर करते रहे कोविड के टाइम में, which are based on the content of the book and the idea of barter system, using the currency effectively and making different combinations of so आप देख रहे हैं कि यहाँ पे different usage of coins and notes यूज करते हुए खरीदारी का एक एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट जो है सिखाया जा रहा है. और ये कैसे आप लिमिटेड इनकम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस
से चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ग्लॉसरी का। ये डिजिटल ग्लॉसरी है जो मैथ्स की तमाम तर वर्ड्स विद पिक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करेगा मैथ्स के डिफरेंट वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्सेज में हमारे पास मैथ्स एक्टिविटीज है, मैथ्स शीट्स है और मैथ्स वीडियोस हैं। सो ये सब आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में कलर्ड डाउनलोडेबल हैं और आप इस तरह से ये गेम्स जो हैं ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव एक्टिविटीज आप बच्चों को लिंक्स दे सकते हैं, दे कैन हैव दिस इन क्लासरूम टाइम आल्सो, दे कैन हैव इट एट होम आल्सो। और इस तरह से मैथ्स एक्टिविटी शीट्स हैं हमारे पास। और हमारा जो वीडियोस हैं ये हमारी ऑक्सफोर्ड आउल की इंटरनेशनल वीडियोस यूट्यूब चैनल पे भी है और हमारी जो लोकल चैनल है यूट्यूब का, पाकिस्तान का जो ओयूपी का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियोस और मेरे अलावा और ट्रेनर्स की वीडियोस रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट, हमारे वेबिनार्स, हमारी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके डिफरेंट वीडियोस, मैथ्स ट्रिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड जो है एक्टिविटीज दे आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बच्चों को दे सकते हैं ऑफ मेकिंग posters and math strategy charts, and you can have low cost fun activities during the classrooms, और आप अपने इंटरेक्शन को मजे का बना सकते हैं with children using different ways of representing the content. So it is up to you to make your classroom fun. इसी तरह हम आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा टाइम डिजिटली गुजार रहे होते हैं फोन्स पर। सो व्हाई कांट वी यूटिलाइज दिस टाइम इफेक्टिवली। आगे जाने के लिए आप देख रहे हैं द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर बेसिकली लुकिंग एट, उसमें डिजिटल इंटीग्रेशन के बगैर जो है देयर इज नो पॉइंट। सो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स देना और उनसे ये बातें करना या उनका ग्रुप बना लेना और एक्टिविटीज ग्रुप्स के थ्रू करना, this is going to really be helpful. So we also have subscription based mymaths.co.uk. ये भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हर तरह से हमारी जो मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल हैं टू इंटीग्रेट, और हंड्रेड्स ऑफ लेसन्स इसमें अवेलेबल हैं। बट ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ी ज्यादा है, इट इज इन पाउंड्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हर किस्म का कॉन्सेप्ट जो है आप देख सकते हो माय मैथ्स पे भी अवेलेबल है और आप बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के ऊपर बच्चे एक्टिविटीज कर सकते हैं। देन दिस इज द डैशबोर्ड इन विच करिकुलम के बारे में भी वो बता रहे हैं, नेशनल करिकुलम के बारे में भी, और दे आर टेलिंग देम कि जी किस तरह से कौन सा बच्चा कैसे जो है वो परफॉर्म कर रहा है, कितनी एक्टिविटीज उसने कर ली हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने दी थी, और फिर देन इफ दे डू गुड वर्क देन दे गेट different lives in the games। और इस तरह से आप इनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और आसान से आसान कॉन्सेप्ट और मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी जो है उसको सिखाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। So in case if anybody is interested in this platform, you can get in touch with our sales rep. And with this, I open the house for Q&A for mathematics. In case if you want to ask any questions, please feel free to ask. And after this, we will just start the science portion. May I have questions? आपके कोई सवालात हैं जी मैथ से रिलेटेड? अगर नहीं है तो फिर हम साइंस स्टार्ट करें।
Okay, I think I can't have any questions from your side, so let's start the science portion. And for the science portion, ji, our main focus is going to be on how science works. अब साइंस की जो कहानी है वो बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट ऐसे हो गई है कि ग्रेड 1, 2 और 3 we are required to do those in Urdu. So we'll be focusing more on the grade 4 and 5 as per the SNC alignment, and we'll be talking about what we are expected to do with the science curriculum. So this is the document which government has provided for us to make our content SNC aligned. So जैसे मैथ्स की रिक्वायरमेंट थी वैसे ही इस डॉक्यूमेंट के अंदर साइंस की रिक्वायरमेंट है. मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ पे. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इस तरह से जो है, सॉरी यहाँ पे इसको करिए, let me just please bear with me. तो आपने ये करना है कि यहाँ से आपने इसे कॉपी किया और ये जो आपकी बार है यहाँ पर इधर आपने इसे प्लेस कर दिया और आप यहाँ पर can you all see that we have reached this PDF of this document of SNC और ये सारा जो कंटेंट है ये इस पर बेस्ड है. ठीक है. So I will just be telling you things in my presentation which are based on this document, which is from the government. So looking at the strands, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि 6 स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें से 3 स्टैंड्स लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और अर्थ एंड स्पेस साइंसेस के हैं, जबकि क्रॉस कटिंग एलिमेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्किल्स, एटीट्यूड और स्टेम के बारे में हैं. सो आप ये 6 एरियाज जो हैं इनको आपने फोकस करना है. उसमें से 3 जो हैं वो आपके स्ट्रैंड्स हैं, बाकी आपके क्रॉस कटिंग एलिमेंट्स हैं. और आप जब देखोगे तो सारा ही कंटेंट जो है वो नॉलेज जो है वो इन स्किल्स के थ्रू पढ़ानी पड़ेगी और आपने काम करना है विद चिल्ड्रंस एटीट्यूड एंड मॉरल वैल्यूज. सो जनरल साइंस का जो फ्रेमवर्क है उसमें जो नॉलेज है, that knowledge has to be imparted amongst children through these skills, and we also have to work on their attitude and moral values. And that's how these benchmarks of these strands, life science, physical science and earth science are focused, और उसी से हमारे learning outcomes जो हैं निकलते हैं. learning outcomes कह सकते हैं या specific learning objectives कह सकते हैं. सो ये जो स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स हैं ये ग्रेड 4 और 5 के, आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड 1 तो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करें और एक्सप्लेन कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर को और बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स और जो प्रोसेस है जिंदगी का, और वो इन्वेस्टिगेटिव टास्क बना सकें जिसमें लिविंग थिंग्स और के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में जो है वो फोकस किया जा सके. सो बाय द एंड ऑफ ग्रेड 5 जब 4 और 5 बच्चे कंप्लीट कर लें तो उनको आना चाहिए इकोसिस्टम क्या है, हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू लिविंग थिंग्स एंड फॉर्म्स ऑफ फूड, कंपैरिजन और कंट्रास्ट आना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनको आना चाहिए. दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कॉजिंग कॉमन डिजीजेस.
और कंपैरिजन और कंट्रास्ट लाइफ साइकिल्स का कर पाए, रिप्रोडक्शन के बारे में जान पाए, आइडेंटिफाई कर सकें कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और डिस्टिंग्विश कर सके बिटवीन वेरियस फूड्स एंड कंपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड। तो स्टैंडर्ड 2 जो है वो बेसिकली फिजिकल साइंस को कवर कर रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज और फॉर्म्स और इंटरेक्शंस ऑफ एनर्जी और मैटर के बारे में सीखेंगे और एप्लीकेशन कर सकेंगे केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स की। So they should be able to compare, differentiate mixtures and solutions में, analyze and dilute and concentrated solutions के बारे में बात करेंगे। They should identify various properties of metals, demonstrate the effect of heat and state of matter, and they should be able to describe the form of energy, simple energy transformation आनी चाहिए, force के बारे में, gravity के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। They should be able to recognize about friction, और वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके सिंपल मशीन्स कैसे काम को आसान बना देती हैं, इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच कैसे वो ले रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और रिलेशनशिप बता सकें बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और फिर थर्ड जो एरिया है अर्थ एंड स्पेस साइंस का, वहां पे स्टूडेंट्स जो हैं दे शुड बी एबल टू know about the processes and interacting amongst the earth system. They should be able to compare and contrast planets and sun to their planets and star system and explain how we learn about universe. So बच्चे जो हैं उनको अर्थ रिसोर्सेज के बारे में जो हम डेली लाइफ में यूज करें उनको आना चाहिए, जियोग्राफिक लोकेशन, वेदर, क्लाइमेट्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, और रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन जो है अराउंड द सन, उसके बारे में हम उनको बताएंगे। दे शुड बी एबल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्क्राइब सॉइल कंपोनेंट्स, और फिर अर्थ, सन, मून, सोलर सिस्टम का क्या आपस में ताल्लुक है। दे शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ रिलेशनशिप ऑफ अर्थ, मून एंड सन कॉजेस इक्लिप्सेस एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज। और फिर क्रॉस कटिंग एलिमेंट्स जो हैं उसमें आप देखो कि स्किल्स जो हैं वो हमने फोकस करने हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के, ताकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ चीजों को याद ना करें बल्कि इंक्वायर करें, जाने, कोशिश करें जानने की और एक्सप्लोर कर पाए। उनका एटीट्यूड साइंस की तरफ कैसा होना चाहिए ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें, और क्या वो ऐसे एक्टिविटीज इंटीग्रेट कर सक रहे हैं जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स जो हैं वो इकट्ठे लेके चल सकें। सो लुकिंग एट दीज एरियाज, अब स्टेम के बारे में जो है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इसका जो करिकुलम का जो फोकस है ये ऐसा होता है जिसमें ये चारों जो एरियाज हैं इनको इकट्ठे लेके एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट से चलना होता है। सो ये 4 डिसिप्लिन, कहीं पे साइंस की इंक्वायरी हो रही है और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं टेक्नोलॉजी इंफ्यूज कर रहे हैं। सो इस तरीके से इसको लेके चल रहे होते हैं। सो स्टैंडर्ड 4 जो है, स्टूडेंट्स विल डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, inquiry, solving problems, communicating scientific ideas and result, working collaboratively and making informed decisions. So अब क्रॉस कटिंग एलिमेंट जो स्किल का है उसमें देखना ये है कि आप वो स्किल्स जो इंक्वायरी के वो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या सेफ्टी रूल्स आप अप्लाई कर सक रहे हैं या नहीं कर रहे, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आप फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो आपके डिसीजंस हैं क्या वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हैं, आर यू श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड डू यू थिंक यू शुड बी डूइंग दैट, suggesting solutions of various scientific problems. And then attitude. अब बच्चे जो हैं they need to have a sense of curiosity and wonder about the natural world. They need to be encouraged to develop attitudes that support the responsible acquisition and application of scientific and technological knowledge. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज दरियाफ्त करें, कोई चीज बनाएं, लेकिन वो environmentally harmful हो और आप फिर भी उसे बनाते चले जाएं. Even though it can be a very good scientific innovation, but it can be harmful for people around you. So आपको वो ownership लेना कि चीजें जो है हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए क्या वो
लिविंग थिंग्स के लिए, नॉट ओनली लोग, वो सेफ है या नहीं. सो बी ओपन माइंडेड इन सेल्फ रिव्यू, peer review and teacher review. Honesty और integrity के साथ आप चलें और be sensitive to the needs of others. And you need to show concern for safety of others. ये नहीं कि आपने एक ऐसी चीज बना ली जो harmful है लोगों के लिए, आप फिर भी बनाते चले जाएं. So then the sixth area is that the students should be able to understand the nature of science and technology and the relationship between science and technology and the social environment context. Again वही बात कि जी टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज जरूर करें, मैथ्स के कॉन्सेप्ट जरूर लेके आए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल रखें कि बाकी दुनिया के लिए आपकी इन्वेंशन खतरनाक तो नहीं है, उससे नुकसान तो नहीं कोई पहुंच रहा, कोई नए प्रॉब्लम्स तो नहीं अराइज हो रहे. सो लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट, तो आपने देखना है कि आपने कैसे आम इंसान की डेली लाइफ की क्वालिटी बेहतर करनी है. ठीक है, you have to understand how scientific concepts of STEM affect life and society. So looking at the area, हमने देखा कि तमाम तर किताबों के अंदर जो है 4 पार्ट्स हैं जिनमें 10 यूनिट्स कवर होने हैं. सो ये 4 पार्ट्स होंगे जी, और यही 4 पार्ट्स जो हैं जिसमें पार्ट 1 इज लिविंग थिंग्स, पार्ट 2 इज मटेरियल्स एंड मैटर, पार्ट 3 इज फोर्सेस एनर्जी एंड मशीन एंड पार्ट 4 इज अर्थ एंड स्पेस साइंस. इसको हमने देखना है. और आप ये देख रहे हो कि एसएलओ शुरू में दिए हुए हैं. सो सारे एसएलओ जो रिक्वायर्ड थे बच्चों को जानने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो आपने कवर करने कंटेंट में. सो इसके साथ रिलेटेड वीडियो कंटेंट जो है, वेब लिंक वो यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि जब आप ये कंटेंट पढ़ा रहे हो तो साथ आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना चाहें तो आप उनको डिफरेंट वीडियोस दिखाएं ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतर तौर पे रीइंफोर्स हो. Then we have put in this concept check. This gives after every major topic, this gives you an opportunity to assess the understanding of the concepts that you want children to learn. So वो fill in the blanks के जरिए भी हो सकता है, वो और different ways के अंदर भी हो सकता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं और ये कॉन्सेप्ट है ऑफ वेन डायग्राम्स, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, और हम कंपेयर कर रहे हैं बाय इंटीग्रेटिंग वेन डायग्राम्स कॉन्सेप्ट टेक्निक, और आइडिया जो है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने का है. सो यू कैन हैव lots and lots of interesting activities which can actually make your classroom fun for the children. और यहाँ पर डू यू नो का पोर्शन जो है ऐसी आपको फैक्ट्स बता रहा है जो आप हम चाहते हैं कि चीजें बच्चों को ज्यादा अच्छी आ जाए. एंड देन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जिसपे यही कॉन्सेप्ट जो है वो डिजिटली आपको समझाया जा रहा है और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी हैं. सो लुकिंग एट द questions, we have developed such questions which are intriguing, which develop the skill of inquiry amongst children. और फिर यहाँ पे ways दिए गए हैं to protect diversity, ताकि वो endangered ना हो जाए species. और ये बुक जो है generally it aims at building higher order thinking skills, ताकि बच्चे जो हैं वो outside the box सोच सकें, problem solving approach को effectively इस्तेमाल कर सकें. So looking at the ecosystem, as you can see, यहाँ पे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फोकस करने के लिए सवालात दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है पोल्यूशन का प्रॉब्लम कि कितनी गंदगी होती जा रही है, हमारे urbanization on effect of water supplies and drainage and wildlife. So these can be used for formative assessments also. ये जो concept है यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है इकोसिस्टम को इफेक्टिवली. और now this area is putting focus on the importance of information, clarifying misconceptions. कोई आपको गलत फहमी हो गई तो myths and facts के जरिए आप उसको जो है फोकस कर सकते हैं. Then there are fun pages जिसमें we are trying to test the and revise factual knowledge, and here you can see this concept is explained through a web link.
washing hands, and about coughing. What exactly do you need to focus as far as your diet is concerned? Balanced diet hoti kya hai? Balanced diet se related videos. And then activities selected items that you add to your diet. सो यहाँ फूड पिरामिड की बात हो रही है कि खाने के अंदर कौन सी चीजें खानी चाहिए, कितना हिस्सा उसका जो है वो जो है फोकस करना चाहिए ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कितना फोकस करना चाहिए ऑन डेयरी, कितना फोकस करना चाहिए ऑन मीट्स, कितना फोकस करना चाहिए ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन। तो किस तरह से आपकी प्लेट बैलेंस होगी। So MCQs इस तरीके से exercises में दिए गए हैं, and then addressing higher order thinking skills. So these are the activities which will gradually instill all the scientific um, processes and procedures which were meant to be taught in the SNC. So extended activities are there to reinforce the concepts as addressing multiple intelligences of the students. Then they have role play, drawing, classification की activities, observation और inferencing की, ताकि higher order thinking skills को आप cover कर सकें। और fun and engaging activities हैं ताकि आप लोगों को मजा आए classrooms में। Looking at the matter and its characteristics. अब ये बड़ी एक simple सी activity है। Can you think of an example of a solid, a liquid and a gas found in a motorcycle? What we are basically focusing is that students should think like a scientist. और again to support this states of matter की हमने यहाँ पे दो आपको वेब लिंक्स भी दिए हैं। Then taking responsibility, जहाँ पे ये बात आती है environmental watch की, तो हमने देखना है कि environment के लिए क्या बेहतर है, and comparison of metals and their properties, and then different sources of energy to do work. फिर यहाँ पे experiments की बात हो रही है, hypotheses और analysis की बात हो रही है. So that's very, very important in science that you do such activities in which you have simple experiments, you test the hypothesis and analyze your results effectively. So looking at the skills of observation, यहाँ पे sensory organs की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप light and shadow reflection और ये noise pollution. अब नॉइज पोल्यूशन की जो एक्टिविटी है, आप देखिए कि कौन कौन सी चीजें जो हैं आपको लगता है शोर क्रिएट कर रही हैं, और वो नॉइज ऐसा है कि वो नॉइज जो है वो बेसिकली पोल्यूशन है. सो लुकिंग एट द एक्टिविटीज जनरली इस एज पे ही हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करें ताकि उनको रिसर्च की तरफ ले जाया जा सके. And then looking at forces in motion, simple machines, skills of observation by experience. यहाँ पे आप देख रहे हैं balloons use हो रहे हैं और experience के through activities इस तरह की हैं कि बच्चे उसको खुद से करके जो है वो explore कर रहे हैं चीजें. Then friction, simple machines, and suggested activities could be designing hovercraft using the concept of friction with the help of balloons and CD player and plate. So simple activities का mention किया जा रहा है कि ऐसी activities करें जो बच्चे जो है enjoy कर सकें. Then pulley, wedge और gear. And then we have earth resources, air, water and land, fossil fuels, earth and space, triggering higher order thinking skills. यहाँ पे सवाल ऐसे हैं जो बच्चों को सोचने पे मजबूर कर देंगे in terms of science. Then changes in weather and water cycle. और यहाँ पर as you can see आजकल भी बड़ा ऐसा है, smog है. So different type of weather के बारे में बात हो रही है, fog, mist, frost and dew. And then earth and space science, solar system. Thought-provoking questions are there to trigger inquiry. And then there's a self-check ताकि आप देख सकें कि आप कितना आपको आया खुद से. Important facts may be used for these self-checks. And then fun activities. So हमारा जो mascot है ये आपको fun activities की तरफ guide कर रहा है. Playing games, making collage, thinking if he made the correct statements or he was wrong. And then using paper bag, cards,
फेस मास्क बनाने के लिए, और फिर टुवर्ड्स द एंड ग्लॉसरी है। और इसी तरह ग्रेड 5 के अंदर कंटेंट पेज जो है ये उन्हीं 4 एरियाज को कवर कर रहा है। क्लासिफिकेशन है, एक्टिविटीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और आप देख सकते हैं कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताया जा रहा है कि किस एरिया के बारे में आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, एंड हाउ जर्म्स आर स्प्रेड। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड एक्टिविटीज जो हैं वो दी गई है ताकि बच्चे जान सकें कि कैसे जो है ये बीमारियां फैलाने में काम आते हैं। देन फ्लावर्स एंड सीड्स, पॉलिनेशन के बारे में है, वीडियो लिंक, एंड देन वाटर पोल्यूशन, environmental pollution. You can design a model to explain the greenhouse effect, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों के अंदर क्या फर्क होता है, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। अब देखें जब आप फ्राई कर देते हैं एग्स को, हाउ इट इज फॉर्म, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, एंड दिस इज इरिवर्सिबल, ये वापस नहीं हो सकता। ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट विद द आयरन, breaking down the surface of the metal chain, and then burning wood changes into ashes। ठीक है, सो इसी तरह जब आप बनाना को देखें तो वो डिके जब होता है तो केमिकल चेंज इस तरीके का होता है कि वो इस तरह से रॉट हो रहा होता है। सो द कॉन्सेप्ट्स आर टॉट इफेक्टिवली, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, साउंड, और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको एक लिंक दिया गया है ताकि हर एक्टिविटी को सिखाने के लिए आपके लिए आसानी हो। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सर्किट्स एंड फ्यूजेस, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो बेसिकली सोचें और सोच के एक्टिविटीज इस किस्म की करें जो मजे की हो। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एनवायरमेंट, एंड देन सैटेलाइट्स, टेक्नोलॉजी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज suggested activity where you can make PowerPoint presentations on any of these 4 topics. You can divide the class into 4 and assign projects to the student. Looking at the assessment and evaluation, this is the last part of our session of today, so इसको बड़े ध्यान से देखें। अब क्या हो गया, रोल जो टीचर का है वो टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड हो चुका है। प्रोडक्ट सेंटर्ड से प्रोसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लर्निंग प्रोसेस को। टीचर्स आर नाउ नॉट ट्रांसमिटर्स ऑफ नॉलेज एनी फर्दर, दे आर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ नॉलेज। अब टीचर्स जो हैं वो डूअर्स नहीं रहे, अब वो इनेबलर्स रहे ताकि बच्चे खुद से काम करें। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक फोकस नहीं है, इंटीग्रेट किया जा रहा है अक्रॉस द सब्जेक्ट डिसिप्लिन, और टीचर इनेबल कर रहा है बच्चों को नॉलेज को इन लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड साइंस, स्टेम एजुकेशन की तरफ। अब बच्चे जो थे पहले पैसिव रेसिपिएंट्स थे, अब एक्टिव लर्नर्स बन गए और वो खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। They've now started asking questions. They need to ask questions, they need to inquire, they need to take responsibility of their own learning, and they need to collaborate with other learners. They need to connect their learnings. So strands जो हैं वो लाइफ साइंस को 45% वेटेज है, फिजिकल साइंस को 35% और अर्थ एंड स्पेस को 20%। नोइंग को जैसे मैथ्स में 40% था, उसी नॉलेज की एप्लीकेशन को 40% है और रीजनिंग को 20%। और हम जो साइंस स्किल्स जो फोकस कर रहे हैं ना, वो सबसे पहला स्किल है ऑब्जर्वेशन का, दूसरा है मेजरमेंट का, तीसरा है क्लासिफिकेशन का, चौथा है इन्फरिंग का, और पांचवा है प्रिडिक्टिंग का। इसी तरह साइंस की जो मजीद स्किल्स हैं उसमें कम्युनिकेशन, hypotheses and designing experiments. So then controlling variables, यानी एक को कंट्रोल करो तो दूसरे को क्या इफेक्ट हो रहा है, या दूसरे को कंट्रोल करो तो पहले पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इंटरप्रेटिंग डेटा एंड फॉर्मुलेटिंग मॉडल्स।
और आप देखें जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ रही है तो इसमें हमने जो एक्टिविटीज आपसे डिस्कस की वो कहीं पे एट्रीब्यूटिंग को कवर कर रही है, कहीं पे कंपैरिजन और कंट्रास्ट आपने देखा, ग्रुपिंग की एक्टिविटीज हैं, सीक्वेंसिंग की हैं, प्रायोरिटाइजिंग की हैं, एनालिसिस की हैं, डिटेक्टिंग बायसेस की हैं, एवेलुएटिंग की है और मेकिंग कंक्लूजन्स की हैं। जबकि इसके अलावा जनरेटिंग आइडियाज, मेकिंग इन्फ्रेंसेस, प्रिडिक्टिंग, विजुअलाइजिंग, making analogies and inventing, synthesizing and making hypotheses, and then making generalizations. So ये प्रोसेस जो है अगेन उसी तरह फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर चलती रहेगी, जिसमें आप असेसमेंट फॉर लर्निंग भी करोगे और डायग्नोस्टिक भी करोगे, और टुवर्ड्स द एंड यू विल हैव समेटिव असेसमेंट। सो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप नॉलेज पढ़ा रहे हैं, चाहे आप स्किल टेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप उनके एटीट्यूड्स और मॉरल वैल्यूज को देख रहे हैं। आपने समेटिव असेसमेंट भी करनी है, आपने फॉर्मेटिव भी करनी है, और आपका जो अंदाज है वो इन तीनों बेंचमार्क्स को कवर करना चाहिए। तमाम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो आपने अचीव करने हैं। और ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें आप एक गोल तयन करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास क्लास टेस्ट भी हैं, वर्कशीट्स भी हैं, क्विजेस भी हैं, क्लास एक्टिविटीज भी होंगी, प्रोजेक्ट्स भी होंगे और होमवर्क भी होगा। सो आपका जो टीचर्स मैनुअल है अगेन इट इज फॉर योर सपोर्ट, उसमें लेसन प्लान्स भी होंगे, उसमें स्कीम ऑफ वर्क भी होगा, उसमें एक्टिविटीज पहले से दी गई होंगी, एसएलओस पहले से शुरू में आपको नजर आएंगे, और टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज भी मेंशन्ड होंगे, डिफरेंट एक्सटेंडेड एक्टिविटीज आपको दी जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स आपको दिए जाएंगे, और एक्टिविटीज और वर्कशीट्स ऐसे डिजाइन की जाएंगी कि आप के पास एक वैरायटी हो एक्टिविटीज की हर कॉन्सेप्ट को लेके। So you will have lots and lots of learning materials and activities that can be adapted. With this, I would like to end my session and open the house for question and answers relating to science. Any questions, please feel free to type in the chat box or unmute your mic and shoot out the questions. Really, thank you, Aisha. We have a Q&A box in front of you. जी आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए होंगे ऑलरेडी। लेट्स से कि आप देखें लास्ट पे क्वेश्चन है, अगर आपके सामने आ रहा है तो आप उसको ओपन करके क्वेश्चन आंसर्स जी 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 बिल्कुल। एड्रेस कर सकते हैं। Okay, there is, as maths teacher, how important is the relationship I have with my student? Okay, this is a very, very important question. Thank you so much for this question. हाजिया, ये आपने भेजा है regarding your relationship with your students. मेरा ख्याल है कि सबसे important portion जो है वो relationship building का ही है। Once आपका एक ताल्लुक अपने स्टूडेंट से बन जाता है, और वो ताल्लुक जो है वो डर का नहीं होना चाहिए, वो कंफर्ट का होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी कंफर्टेबल विद डिस्कसिंग हिज इश्यूज विद यू, और वंस दैट इज समथिंग दैट यू अचीव, उसके बाद वो बच्चा जो है वो आपके लिए किसी किस्म की भी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, आपको आपका सर नीचा नहीं होने देगा। आप अगर कभी कभी उसकी बात मानोगे तो वो जहां जहां आपको लगेगा कि उसने शाइन वो कर सकता है, वो आपको शाइन भी करके दिखाएगा, वो आपको अचीव भी करके दिखाएगा। सो आई फील दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट of relationship building that you must pay attention on with every child in your class. Okay, then there is a question, are some mathematics teaching methods more effective than others? Yes, definitely. There are some maths teaching methods which are definitely more effective than others. मेरा ख्याल है मुझे when I was little तो मुझे म्यूजिक के थ्रू सिखाया जाए तो मुझे जल्दी से आ जाता था, मुझे वीडियोस के थ्रू सिखाया जाता था तो मुझे जल्दी से आ जाता था, बट इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि as Howard Gardner said that there are maybe
8 or 9 ways in which you can learn a specific strategy, whether it be math, science or anything. तो उसमें देखना ये है कि बच्चे जो हैं उनका थॉट प्रोसेस कैसा है. अगर वो म्यूजिक माइंडेड हैं तो आप म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर वो लॉजिक माइंडेड हैं तो आप उनको पजल्स के थ्रू सिखा सकते हैं. अगर वो पिक्चर्स के जरिए ज्यादा अच्छा समझ पाए तो आप तस्वीरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनिपुलेटिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देन लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा है तो आप कंटेंट लिखा हुआ उनको ज्यादा अच्छा सिखा सकते हैं. सो डेफिनेटली कुछ चीजें किसी पे अच्छी वर्क करेंगी, कुछ और वही चीजें किसी और पे मजीद अच्छी वर्क भी कर सकती हैं. Okay, now then ma'am please oh I missed this. Azan was happening at some time. Okay, please speak in Urdu. Question है, question क्या है? Are some maths teaching methods okay? As okay, how can we pay attention? We pay attention the student to us. I don't understand what the question is here. How can we pay attention to, you can make students attentive towards you? Is that what you are trying to answer? देखिए जी, curiosity is the key to success. जब भी मैं एंटर होंगी ना क्लासरूम के अंदर, तो सबसे पहले मैं ऐसी कोई मजे की बात मुझे लेके आना चाहिए, कोई मजे की फन एक्टिविटी, कोई रिडल, कोई रिलेटेड जोक या कोई रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ मैथ्स या साइंस जो कि बाद में मैंने कंटेंट जो पढ़ाना है उससे रिलेटेबल हो और बच्चों की क्यूरियोसिटी को मैं ट्रिगर करूं. ठीक है. सो अगर मैं हर बारी कोई ऐसा मजे का पजल, कोई ऐसी मजे की एक्टिविटी लेके आऊंगी जो बच्चों की क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर देगी, तो वो आने वाले बाकी के जो मिनट्स हैं वो मेरे सारे कंटेंट को ध्यान से सुनेंगे. सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली कैन मेक देम बी अटेंटिव टुवर्ड्स यू. अगर आपको लग रहा है वो बोर हो रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही या दे आर नॉट एंजॉयिंग, तो आपको अपना पढ़ाने का अंदाज फौरन से पेशतर चेंज करना चाहिए और आपको कोई और एक्टिविटी अचानक स्टार्ट कर देनी चाहिए. सो बिकॉज अगर हम वही एक्टिविटी करते जाएंगे जो उनको मजा नहीं कर रही, तो आपका सारा टाइम जाया हो जाएगा. So how we can achieve their writing skills? Yes. Okay. So writing definitely is a skill which is very important, whether it's maths or science. और इसकी भी टेक्निक्स होती हैं. So writing skills के अंदर वर्ड बैंक्स होते हैं और इसी तरह आपने देखा कि मैथ्स और साइंस की बुक्स में हमने काफी मजे मजे की एक्टिविटीज डिजाइन की हैं जिसमें ग्रेजुअली बच्चे जो है वो थोड़ा थोड़ा करके they will develop this writing skill, but this has to be developed over time. ये इतनी जल्दी नहीं होता, but gradually we have to work on this area. अच्छा जी, do we have any other question जो मैंने मिस कर दिया? अच्छा, अब वीडियोस जो है जी वो आपको मैंने इस सेशन के अंदर बहुत सारे लिंक्स दिए हैं जिसको आप जब भी चाहो आराम से एट योर ओन टाइम उसको प्रेस करके वीडियोस देख सकते हैं. क्योंकि द पॉइंट इज दैट हमारी कोशिश ये थी कि हम पढ़ाने के जो तरीकेकार जो SNC में बताए गए हैं, चाहे वो मैथ्स रिलेटेड हो या साइंस रिलेटेड हो, उसको जान सकें. So video links are there with you. I have shared them all. You can always click them and have a journey of interesting videos for yourself. Okay. नहीं, चैट बॉक्स में ना लिंक्स अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली आप वो मुझे अलग से शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं नहीं, इनके ग्रुप चैट में बॉक्स नहीं जी, मेरी जो प्रेजेंटेशन थी ना जी उसके ओके अंदर ओके हर पेज पे लिंक्स थे. ठीक है. श्योर If you श्योर have श्योर recorded it, then it would be with you. In case it's not, if you've not recorded, then हमारे जो
इवन जो एसएनसी का डॉक्यूमेंट है उसमें सेपरेटली लिंक शेयर मैंने किया हुआ है, कॉलम्स के अंदर हर रिलेटेड टॉपिक के वेब लिंक्स दिए हुए हैं। Okay, is it possible to have the participants your presentation? आपने रिकॉर्ड नहीं की भी, क्योंकि आई कुड सी समबडी रिकॉर्डिंग द सेशन। जी जी, वो तो होगी अवेलेबल, लेकिन अगर अलग से मिल जाए इनको तो वो बेहतर रहेगी। लिंक्स हैं जी, आप वही शेयर कर सकते हैं उनसे। ओके ओके। जी जी। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और सवाल? जी हम आप सिंपली रेज हैंड का ऑप्शन जो है आपके सामने आ रहा होगा, उसको प्रेस कीजिएगा तो देन आपको हम यहाँ से अनम्यूट करेंगे। जी साजिदा मुमताज खान है, मैं यहाँ से माइक आपका अनम्यूट किया है, आप अपना माइक अनम्यूट करके तो क्वेश्चन करें। साजिदा मुमताज खान, आपका माइक यहाँ से अनम्यूटेड है। जी साजिदा। चलें, अ, अभी तो किसी का नहीं है, अगर किसी का है तो वी हैव अराउंड 5 मिनट्स मोर। आप अपना क्वेश्चन जो है वो या तो चैट बॉक्स में पुट कर दें या फिर अपना राय सेंड कर दें। जी नहीं जी, स्लाइड्स अवेलेबल नहीं होंगी। हमारे पास एक लास्ट में मैम क्वेश्चन है, मैम साइंस की बुक के तौर पर हर पेज इम्पोर्टेंट है, इसको जरा आंसर कीजिएगा। जी क्या फरमा रहे हैं? लास्ट साइंस की बुक की तो हर पेज ही इम्पोर्टेंट है इन क्लास, ताकि बच्चे क्रिएटिव भी हो सकें और खुद से। जी डेफिनेटली जी, हर पेज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट कंटेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि जितना कंटेंट जो है वो आपको प्रोसेस के थ्रू सिखाया जाए, डिफरेंट स्किल्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसेस के थ्रू, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो वैल्यूएबल स्किल्स सीख पाए हर पेज से। सो इसीलिए किताबें जो हैं वो अब जाहिर है कि ग्रेड 1, 2 और 3 में तो वैसे भी अब ये उर्दू हो गया हुआ है ना, तो हमारे पास 4 और 5 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमने तमाम तर जो साइंस की इंक्वायरी के स्किल हैं उसको सिखाना है। सो मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस का स्किल है, फिर क्रिएटिव किस तरह से क्रिएटिव स्किल्स और इन्फ्लुएंसेस के हैं या प्रोसेस के हैं या ऑब्जर्वेशन के हैं, तो हम हर पेज के ऊपर किसी न किसी स्पेसिफिक स्किल को भी फोकस कर रहे हैं, हम कंटेंट को भी फोकस करते हैं, और हम मॉरल वैल्यूज को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं, और बच्चों की एटीट्यूड को टुवर्ड्स साइंस हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव और इफेक्टिव हो, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर सकें। So yes, you are right. On every page, the content that is being taught is very, very important, and that is the reason कि मैंने आपको पहले पिक्चर्स दिखाई और उसके बाद मैंने आपको उसका कनेक्ट भी बताया कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या स्किल्स जो है वो इन्फ्यूज कर रहे हैं, और एज पर द एसएनसी हमें क्या रिक्वायर्ड है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जी इन्हीं का क्वेश्चन है ऊपर, साइंस की बुक क्लास 5 के बारे में को पूछ रहे हैं। मैम जो आपने मैथ्स की स्लाइड पढ़ाई है, क्या वो वर्कशीट हमने हार्ड फॉर्म में मिल जाएंगी? अच्छा, जो आपने मैथ्स का कंटेंट देखा है उसमें बेसिकली तमाम तर कंटेंट जो है या तो वो मैथ्स वाइज हमारी जो किताब है उससे लिया गया है, और या फिर हमने लिया है
फ्रॉम हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑक्सफोर्ड आउल, वो आप एक्सेस कर सकते हैं और उसमें से हर तरह की वीडियो और हर तरह के पेज डाउनलोडेबल हैं। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा आपको बताते चलूं कि हमारा जो मैनुअल है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आई वांटेड टू शो यू दैट, so just bear with me, I'll just show you that it is available free of cost on the website। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, गूगल कीजिए www.oup.com.pk, और यहाँ पे जब आप आएंगे तो हमारी ये जो पेज है इसके ऊपर आप इस एरिया के अंदर यहाँ पे देख रहे होंगे, इस एरो से हम मूव कर रहे हैं और ये हमारी जो है टीचर्स मैनुअल जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेट्स से मैं डाउनलोड करती हूँ टीचर्स मैनुअल 3, तो ये पूरे का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास आ जाता है, विच इज अ प्रिंटेबल फॉर्मेट, और ये सपोर्ट कर रहा है हर तरह की वो एक्टिविटी जो एसएनसी नेशनल करिकुलम के ऊपर कैसे अलाइन है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, यूनिट्स किस तरह से हैं, कोर फिलॉसफी। और आप देख रहे हो कि ये सब आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस कर रहा है। एंजाइटी मैथ्स की अगर किसी बच्चे को है, अगर कोई हार्ड ऑफ हियरिंग है, अगर कोई सुनने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी हम जो है ना एरिया, इसको हम टैकलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स, ये साइट का, स्पीच का प्रॉब्लम अगर आ रहा है, मेमोरी का आ रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, डिसलेक्सिक बच्चे को कैसे हैंडल करना है, और ऑटिज्म के ऊपर आप कैसे आप कर सकते हो, एडीएचडी, एंड देन इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एरियाज हैं नंबर ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डेटा हैंडलिंग, और ये आपको मैनुअल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये डाउनलोड कर लें, ये कंटेंट आपके पास सारा आ जाएगा। और यही जो बेंचमार्क्स हैं ये आपको, ये देखें यूनिट्स के बारे में, होल नंबर्स का जो यूनिट है, बिफोर यू स्टार्ट, वॉच आउट, लेट्स बिगिन, सो किस तरह से ये कंटेंट्स जो है, ये मार्जिन जो है ये आपको बता रहा है कि किस तरह से आपका एसएलओ है। फिर आपको शुरू में जो है बता रहे हैं कि कितने मिनट लगेंगे इस एक्टिविटी के लिए, और इस तरीके से आपका कंफ्यूजन बार है जैसा कि मैंने बताया, और इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं आपकी ये डिजाइन है। So towards the end, as you can see, I'll just quickly show you, ये हर टॉपिक को लेके ऐसे ही डिटेल्स हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके बाद काउंटडाउन बुक 3 से रिलेटेड भी आपके पास मटेरियल है, और मैथ लैब पेजेस का रेफरेंसेस हैं, और मैथ्स वाइज से रिलेटेड भी है। Just let me just quickly show you. ये देखें, अब लेसन प्लान्स आपके मैथ्स वाइज के यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स भी दिए हुए हैं, और टीचर्स नोट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये सारा ही मटेरियल जो है ये आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप लोगों के लिए पढ़ाना आसान हो सके। सो किसी भी ग्रेड की आप पूरी की पूरी जो मैनुअल है उसको आप
डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखें ग्लॉसरी है। So this can be a lot of fun for you when you discover it. और मैं आपको ऑक्सफोर्ड आउल भी दिखा देती हूँ, if that's something which you want to have a look. और हमारा जो YouTube चैनल है उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा इंटरनेशनल है। ये देखें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा ही वेबिनार है। तो ये वेबिनार्स आपके लिए हैं ताकि आप इनसे फायदा उठा सके। ये मेरा ही एक वेबिनार है। अच्छा, इसके अलावा हम आपको ऑक्सफोर्ड आउल भी मैं दिखा दूं आपको, बिकॉज वो भी एक ऐसे एरिया है जो आपको फायदेमंद है। ये देखें, ये हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, लिंक को और यहाँ पे डाला। ये देखें, ऑक्सफोर्ड आउल पे ग्लॉसरी में आ गई। ये देखें, मैथ्स से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटीज भी हैं, हमारे पास बहुत सारे नंबर फैक्ट्स, टीचिंग मैथ्स एट होम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मैथ्स, मैथ्स गेम्स। ठीक है, सो आप जब ग्लॉसरी देख रहे हैं तो लेट से मुझे मैथ्स का कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कौन सा वर्ड, लेट से कोई ऐसा वर्ड है जो सी से शुरू हो रहा है, कैपेसिटी, या फिर लेट से और सोच लेते हैं, कैपेसिटी नहीं भाई, मुझे सर्कमफ्रेंस, कॉमन फैक्टर, क्यूमुलेटिव, कॉम्पोजिट। सो देखें हम कैसे कॉम्पोजिट को विद डायग्राम एक्सप्लेन किया जा रहा है, और जहां पे आपको जरूरत है वीडियो की वहां पे वीडियोस भी दिखाए जाएंगे। वर्टिसेस, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस। ये देखें, डिवीजन तो साथ ही उन्होंने वीडियो भी दी हुई है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन को सिखाते हैं। ठीक है जी,
So अब ये आपके लिए काफी सारी चीजें to explore, and I hope you've enjoyed this session. हम किसी तरह भी आपको सपोर्ट कर सके, feel free to just get in touch and we'll try to answer as much as possible. Shari, what are the qualities needed in science teacher to be successful? Achha, the qualities that I feel are very important being a science teacher is that सबसे पहले तो आपका एक relationship हो with your students, and then you are open to ideas coming in from every side, whether it is internet, whether it is some book, whether it is coming from the students. आपको जो भी चीज नई है ना उसको embrace करने के लिए जो है ready रहना चाहिए. ये नहीं है कि किसी और से मुझे कोई चीज पता चल रही है तो मैं नहीं सीखना चाह रही. ठीक है, चाहे वो बच्चों से पता चल रही हो चाहे किसी और टीचर से, we should feel free to adopt. Any other question? कोई और सवाल जी? थैंक यू सो मच. आपको मजा आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको कुछ चीजें इंटरेस्टिंग लगी. जी, with this I would like to end my session. I hope you enjoyed this session thoroughly, and I'll be happy to support you as and when needed. So just feel free to get in touch with our sales rep in case you have further queries, and we are there for your support. अगर आपके पास कोई और सवाल है तो please feel free to ask. Otherwise, I wrap up this session. Okay. Seems that there are no other questions. So with this, I would like to wrap up this question. I hope you benefited from this interaction. And we are there for your support even later also. In case if you have any questions, feel free to ask. Thank you so much for your patience and have a good day. Allah Hafiz. मिस आयशा, ये जो ऑक्सफोर्ड आउल सीरीज का जो लिंक है वो काइंडली आप शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में. जी, ये मेरे स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा. ओके. चैट बॉक्स पे अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश है कि जो लिंक अभी मिस आयशा शेयर करेंगी वो आप सब कॉपी कर लीजिए चैट बॉक्स से, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको कोई रेफरेंस के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड हो तो आप उस लिंक को जो है वो इजीली यूज़ कर सकें. अच्छा, ये ग्लॉसरी का लिंक है, इसी से आप पूरा आप जो है ना आगे भी चल सकते हैं. आपको मिल गया लिंक? जी, have you gotten the link?